آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا تو معترض کا جو کلپ آپ نے دیکھا اور سنا اس کا جواب، پہلی بات معترض سے ہماری بحث بنتی ہی نہیں، معترض سے بنتی نہیں ہے، اور نہ اس سے ہمارا کوئی مباحثہ بنتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کی تعلیم فرق ہے، اس کا عہد فرق ہے، اس کا عالم فرق ہے، اس کے وعدے فرق ہے، اس لیے معترض سے ہماری کوئی بحث یا مباحثہ بنتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمارا عہد جلال کا، ہماری تعلیم روح کی، ہمارے وعدے خوبیوں کی صورت میں، تو اس کے سارے وعدے، اس کی ساری تعلیم اس عالم کی اور لفظوں میں۔ تو میں معترض کو مشورہ دیتا ہوں وہ یسوع کو ڈسکس میں نہ لائے تو اس کے لیے عزت کی بات ہے۔ اگر وہ اس کی ڈسکس کرے گا یا اس کی انجیل کی بات کرے گا، انجیل سنانا اس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ انجیل مقدس میں یسوع مسیح کی جو باتیں ہیں وہ روح ہے، تو معذرت کا روح کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، جلال کا اس کے ساتھ واسطہ نہیں۔ تو جو اس نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے، جواب تو نہیں دینا چاہیے، پھر بھی لوگوں نے کہا پادری صاحب اس کا جواب دیا جائے، تو اس کا جواب یہ تھا، سوال اس کا یہ تھا، چیلنج اس کا یہ تھا، کوئی شخص یہ ثابت کرے بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے۔ اگر وہ کلام مقدس میں سے ثابت کر دے وہی بیٹا خدا ہے تو میں مسیحت کو قبول کر لوں گا۔ مسیحت مذہب میں شامل نہیں کرتی، یہ کلیسیا بھی سن لے۔ مسیحت مذہب میں شامل نہیں کرتی، بڑے قومیں، بڑے قبیلے، بڑے مذہب اپنے مذہب میں اور تعلیم میں شامل کرتے ہیں۔ کس میں شامل کرتے ہیں جی؟ مذہب اور تعلیم میں۔ تو فضل جو ہے، نیا عہد جو ہے، جب اسے قبول کیا جاتا ہے یا اس پر ایمان لایا جاتا ہے تو وہ مذہب میں شامل کہاں شامل کرتا ہے؟ وہ ذات الہی میں شریک کرتا ہے۔ معترض، میرا بیان سننے کے بعد اگر پھر بھی تجھے یقین نہ آئے تو پھر میں کہوں گا، کیا کہوں گا بعد میں بتاتا ہوں پھر کیا کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا پہلی تلاوت جو لیٹ آئے ہیں وہ لیٹ ہی رہیں، اور پہلی تلاوت روز کرے گی یوحنا کی انجیل میں۔ سنیے یسوع مسیح کیا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا جوہر ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے جی؟ خدا کا جوہر ہے۔ یسوع مسیح خدا کی ذات ہے، اور یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے۔ وہ اردو ترجمے کو لے کر کہتا ہے جی یسوع مسیح مخلوق ہے، میں اس کے لیے یہ ریجنل زبان میں متن میں سے روز کو کہوں گا یہ پہلی آیت یوحنا کی انجیل میں سے پڑھ دے، اسے توفیق ملے تو یونانی کی انجیل میں ضرور یہ آیت سن بھی لے اور دیکھ بھی لینا، بلکہ اسے تو یونانی آتی نہیں تو اسی لیے سن لے جی۔ En arche hen hologos, kai hologos he, plaston theon, kai theos hen hologos. لگوس خدا، دوا تھیو خدا، اور لوگاس لگوس کلمہ، ازل میں کلمہ تھا اور کلمہ
खुदा के साथ। ये नहीं लिखा इब्तिदा में खुदा था, इब्तिदा में कलमा था, अज़ल से कलमा था। इसकी ट्रांसलेशन भी कर दो। नहीं कर तो दिए भाई, कलमा खुदा था। फिर कहता जी वाज या कोई लफ्ज़ लिखा हो तो मैं उसके लिए बहुत सारी आयतें पढ़ूंगा जी, एक नहीं। ये मेरी टीम मेरे साथ है जी, ये मेरे साथ मेरी मदद करेंगी, तो बहुत सारी आयतें। ये कलीसिया भी सुन ले और लिख ले। ये बेटी किरण ने भी मेरे साथ सवाल किया था, भाई बेटा खुदा है या नहीं। तो आज आप अपनी डायरी में, अपने जहन में नक्श कर लें। सुनिए, मसीही मज़हब जो है ना, ये मज़हब नहीं है, ये पता क्या है? खुदा का घराना, खुदा की उम्मत, खुदा के लोग। इसने कोई कबीला शिकस्त नहीं दे सका। जिसने इसकी मुखालफत की है, खुदा ने उन्हें खुद ही जवाब दिया। मसीहों का असूल था, उन्हें शहीद भी कर देते थे, उन्हें संसार भी कर देते थे। वो यही कहते थे, बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मैं चाहूँगा भाई कामरान आप यूहन्ना का ख़त निकालिए। यहाँ वाज़े आपको मिलेगा जी, बाप नंबर 5 और आयत नंबर 20। यूहन्ना का पहला ख़त। आज साबित हो जाएगा बेटा खुदा है। मैं पॉइंटों के साथ आपको समझाना चाहता हूँ जी। पढ़िए कामरान भाई। यूहन्ना का पहला खत है जी, बाब नंबर उसका 5 है, आयत नंबर 20 है। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हकीकी खुदा, आपने क्या सुना है जी? बैठ जाए बैठ जाए। हकीकी खुदा क्या है जी? हकीकी खुदा, हकीकी खुदा, खुदा है। क्या है जी? हकीकी खुदा, हकीकी। खुदा, मोतरस ने सुना क्या है जी? हकीकी खुदा, हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी। जिंदगी तो खुदा ही देता है। बेटा जो हकीकी खुदा है ना, वो क्या है? जिंदगी। अब जिंदगी लफ्ज़ों में तो नहीं होगी, ज़िंदगी को कबूल किया जाएगा। मोतरस को मैं मशवरा देता हूँ, अगर अंजील सुनानी है तो यस्सु को कबूल कर ले। यस्सु को कबूल करेगा तो इसे समझ मिलेगी। ये जब भी बाइबल पढ़ता है, जब भी तराज उठाता है, ये बाइबल ही तराज पढ़ने के लिए पढ़ता है, तराज उठाने के लिए। अगर ये कबूल करेगा तो इसे समझ मिलेगी बेटा खुदा है। आपको पता है सजदा किसको किया जाता है? खुदा को, फरिश्ते सजदा किसको करते हैं? खुदा को। कोई और है मखलूक? नहीं। कोई और शख्स है? कोई और ज़ात है? नहीं। अब्रानियों का खत निकालिए, आप पढ़ेंगे। अब्रानियों पहला बाब छठी आयत, पहला बाब और उसकी छठी आयत के अंदर खुदा खुद फरिश्तों को कहता है, जी। जब बेटे को भेजता है, जब अकलौते बेटे को भेजता है और फरिश्तों को कहता है उसे क्या करो जी? सजदा करो। ये खुद पढ़िए जी। इब्रानियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत। और जब बेलौटे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। तमाम फरिश्ते उसे जब पलोठे को फिर लाता है, पलोठे को खुद लाया और पलोठे को कहता है, तो तमाम फरिश्ते जितनी भी फरिश्तों की किस्में हैं, सराफीम हो, करूबी हो और मुकर्रब फरिश्ते हो,
जितने भी फरिश्ते, अकाब की मानद फरिश्ता हो, इंसान की मानद फरिश्ता हो, बछड़े की मानद फरिश्ता हो, घरेलू चपायों जैसा फरिश्ता क्यों ना हो, जैसा भी फरिश्ते हैं वो बेटे को क्या करते हैं जी? सजदा करते हैं। अब दूसरी और कोई राय नहीं है जी, ना कबूल किया जाए। बेटे को सिर्फ सजदा फरिश्तों ने नहीं किया और मखलूकों ने भी किया। किन्होंने? इंसानों ने इस सियारे पर। सारे हवाले पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मोहतरम के लिए परेशानी होगी। मैं आपको सुनाता हूँ, एक हवाला पढ़ लेते हैं, एक ज़ुबानी सुना देता हूँ। 10 कौड़ी यीशु मसीह के पास आए। कितने जी? 10 कितने कौड़ी? 10 कौड़ी। कौड़ियों से लोग नफरत करते थे। कौड़ी अपने मुंह पर हाथ रखता था तो कहता था कौड़ी कौड़ी कौड़ी, नपाक नपाक। अब नपाकी भी, मोहतरस तो इंडिया में बैठकर बातें कर रहा है, उसे पता होना चाहिए पाकिस्तान का कोड भी मसीहों ने ख़त्म किया। इसका सबूत आप नेट पर देखें, उसको फौज ने सलाम किया। क्या नाम था जी? रितफो, सिस्टर रितफो जी, उसको सलामी की गई है जी। कोड ख़त्म कर दिया। और रूहानी कोड भी मसीहों ने ख़त्म किया। आमीन। रूहानी और जिस्मानी कोड भी मसीहों ने ख़त्म किया। क्यों? क्योंकि कोड तो खुदा ही ख़त्म कर सकता है ना जी, डॉक्टरों के बस की बात नहीं। रूहानी कोड कौन ख़त्म करेगा जी? खुदा। अब 10 कौड़ी खुदा के पास आ गए हैं। बेशक मैं तसलीसियाँ हूँ, ये ना समझ लेना ओनली जीसस, उसको खुदा जी कह रहा हूँ यीशु को। मैं तसलीस का कायल हूँ, बाप को मानने वाला, रूह कुद्दस को मानने वाला और बेटे को मानने वाला हूँ। तो 3 खुदाओं को नहीं हम मानते, एक ही खुदा है, क्योंकि ये तीनों की ज़ात एक है, इनकी ज़ाती कसरत है, ये अपनी ज़ात के एतबार से एक हैं। अपनी ज़ात के एतबार से, अकनूम के एतबार से ये 3 पर्सन हैं और ज़ात के एतबार से एक हैं। अगर ये एक ना इनकी ज़ात होती, इनकी सोच एक ना होती, तो कायनात क्या होती? हफरा दफरी का शिकार होती। तो जब 10 कौड़ी आए तो 10 कौड़ियों में से 1 कौड़ी वापस आया तो यीशु ने कहा क्या बाकियों ने शिफा नहीं पाई? और उस कौड़ी ने उसे सजदा किया। क्या किया जी? सजदा किया। भाई तुसी पढ़ेंगे जी, मत्ती की अंजील 8वां बाप और पहली आयत, 8 की पहली आयत आप निकालिए। मत्ती 9वें बाप की 18 आयत जी। हाँ जी, पहली आयत से। मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका 8वां बाब पहली आयत। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे दौड़ी, और देखो एक कौड़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। जी, किसने सजदा किया जी? तो सजदा किसको वाजिब है? खुदा को। तो इंसान सजदा किसको कर रहे हैं? यीशु मसीह को, बेटे को, खुदा को। फरिश्ते किसको सजदा कर रहे हैं? खुदा को। तो अभी भी ना माने, मैंने 3 हवाले दिए और भी दूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, दिल की बातें कौन जानता है? इल्मे साबका का इल्म किसके पास है? खुदा के पास। दिल की बातें कौन जानता है? खुदा जानता है। तो यीशु मसीह एक दावत पर गया, उस दावत करने वाले शख्स का नाम था शमाउन। शमाउन जब उसके घर पहुंचा तो यीशु मसीह बैठा हुआ है जी, गोल तकिए लगे हुए हैं, बैठा हुआ है। तो डिस्कस हो रही है, यीशु मसीह को चेक किया जा रहा है। ये मोहतरज क्या चेक करेगा, बड़े लोग चेक कर रहे थे, कर चुके हैं, कर रहे हैं। हुआ क्या?
दिल में सोच रहा है। एक बदकार औरत आई है, आकर यस्सु के पाँव को छू रही है, अपने आंसुओं से उसके पाँव धो रही है और अपने बालों से उसके पाँव खुशक कर रही है, पाँव को छोड़ नहीं रही। तो शमा उनके दिल में हलचल मच गई है, उसकी रूह बेचैन, जैसे मोतरस की रूह बेचैन है ना, कभी कोई सवाल करता है कभी कोई, ऐसे शमा उनकी भी बेचैन थी। तो अंदर सोच रहा है अगर नबी होता, अब वो जज क्या करना चाहता है, नबी। मैं बाप का शुक्र करता हूँ, मुझे बेटे ने समझ दी है, खुदा के बेटे ने, बेटा खुदा है, क्योंकि खुदा का बेटा आ गया, वो समझ देता है। उसकी सोच और उसकी लियाकत ये थी, मैं से जानूँ ये नबी है। यीशु ने से बढ़कर उसे बात बता दी, क्या? क्योंकि इस्तिशना की किताब में लिखा है, दिल को जानने वाला खुदा है, दिल के इरादों को जानने वाला खुदा है। तो क्या हुआ, खुदा ने, यीशु मसीह ने, जो बेटा है, उसने कहा, शमौन मैं जानता हूँ तेरे दिल में क्या चल रहा है, तेरी रूह में जो बेचैनी है ना, मैं जानता हूँ क्या चल रहा है। कहता है एक सवाल करता हूँ तेरे साथ। अब ज़मीन की बातें कर रहा, जो अगर आलम बाला की बातें करे तो शमा उन्हें क्या आएगी। ऐसे मतरज़त भी समझ कई पल्ले नहीं पड़ा। यीशु ने क्या, ये मोतरज नहीं, जितने मोतरज थे ना, जितने तराज करने वाले, उनको यीशु की समझ नहीं आई। फ़की फरीसी, शरा के आलम, शरीयत के आलम, मूसवी शरीयत के आलम, उन्हें भी समझ नहीं आई। समझ यीशु की उसे ही आती है जो उसे कबूल करता है। अब यीशु ने क्या कहा, शमौन एक आदमी के 5 सिक्के थे, एक आदमी के 10 सिक्के थे, दोनों ने कर्ज देना था, अब दोनों के माफ़ कर दिए, ज़्यादा मोहब्बत कौन दिखाएगा? जिसके 10 माफ हुए, जिसके 10 माफ़ हुए, जिसके ज़्यादा माफ़ हुए। शमौन मैं तेरे घर आया तो तूने मेरे पाँव ना धोए, मैं तेरे घर आया तो तूने मेरा बोसा ना लिया, मैं तेरे घर आया तो तूने मोहब्बत भी उन्हीं के वहाई। इसने मोहब्बत ज़्यादा दिखाई और उसके गुनाह भी ज़्यादा। गुनाह कौन माफ़ करता है? गुनाह कौन माफ़ करता है जी? खुदा। अब एक 38 साल का बीमार है, छोटा बीमार नहीं है। रोज़ फ़की फरीसी आते थे, रोज़ आलम आते थे, रोज़ तरास करने वाले। आपने आयत पढ़ी है जी? ज़रा पढ़ दें आयत, आप भी पढ़ लें जल्दी जल्दी। मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब, तुसी लूका कढ़ो, लूका कढ़ो। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख दे तो वो जिंदा हो जाएगी। जी क्या किया जी? सरदार ने भी सजदा किया है। सरदार अनपढ़ तो नहीं है, कोई सूबेदार है, कोई जनरल है, कोई अच्छी पोस्ट पर है, वो जानता है खुदा के अलावा किसी को सजदा वाजिब नहीं। ये तरामन सजदा नहीं है, ये रियल सजदा है, ये लाही तौर पर सजदा है। अतरामन भी कहते हैं मैं तुझे सजदा करता, वैसे कोई करता नहीं है अतरामन भी। लोगों के जहन में बात है सजदा सिर्फ खुदा को। यीशु ने खुद कह दिया खुदा के अलावा किसी और को सजदा करना ठीक नहीं। खुदा के अलावा तो खुदा को, यीशु ने ये तो नहीं कहा मुझे क्यों सजदा करते। अगर खुदा ना होता तो कहता हो मैनू क्यों सजदा करन दे, अपनी गल दी आप ही मनफी करता, क्योंकि खुदा सी ना करदा तो कर लैन, तो भी खुदा है। फरिश्ते करन दे मना किया, फरिश्तियां कोड़ियां नूं मना किया, अज दी बेटी जिंदा की जिंदगी देन दे। आज मोहतरम को एक बात और कहना चाहता हूँ, यीशु के बगैर, बेटे के बगैर, खुदा के बगैर कायनात मुकम्मल नहीं ना, तो बेटे के बगैर जो खुदा है हिस्ट्री भी नामुकम्मल है। हिस्ट्री का जिक्र करोगे तो खुदा का जिक्र करना पड़ेगा, बेटे का जिक्र करना पड़ेगा, वरना हिस्ट्री की बात आप कर नहीं सकते। चलो मुझे इसकी डेट पर भी शक पड़ रहा है,
یہ اپنی ڈیٹ کا ذکر بھی نہیں کر سکتا. ڈیٹ کا ذکر کرنے کے لیے بھی پہلے بیٹے کا نام لینا پڑے گا، کیونکہ ایڈی کا کیا مطلب ہے؟ خداوند کا سال بھی جو آپ سال گنتے ہیں، سال کے پروگرام بناتے ہیں، سال کی عبادتیں کرتے ہیں، سال کا سب کچھ کرتے ہیں، وہ ایڈی سے ہے. اس لیے کہنا شروع کر دیا ایڈی کیلنڈر غلط ہے، ایڈی کیلنڈر غلط ہے. ہٹانا چاہتے ہیں، بیٹے کو ہٹانا چاہتے ہیں. بیٹا نہیں ہٹے گا جی. کائنات کا حسن بیٹے کے سبب سے ہے، کائنات کا حسن اس کلمہ کے سبب سے ہے. اگر کائنات میں کلمہ نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. کائنات کا سارا حسن بیٹا ہے. کائنات کی فضائیں کلمے سے بنی، کائنات کے آسمان کلمے سے بنے، کائنات کی روحیں کلمے سے بنی، کائنات کے فرشتے کلمے سے بنے، کائنات کی زمین کلمے سے بنی، کائنات کا پانی کلمے سے بنا، کائنات کے پرندے کلمے سے بنے، کائنات کی مچھلیاں کلمے سے بنی. کل عالم اس کے کہنے سے بنے اور اسی کے لیے بنے اور اسی کے واسطے بنے اور اس میں سے اور اسی میں قائم رہتے ہیں. بیٹا جو خدا ہے، کائنات کی وجہ ہی بیٹا ہے. اگر کائنات میں وجہ نجات بیٹے کے بغیر نہیں ہے. نجات کون دیتا ہے؟ خدا. تو جو کوئی اس کا نام لے گا. موترس کو میں کہنا چاہتا ہوں، بائبل جب پڑھتا ہے نا، تیرے سے بدروہیں اچھی ہیں. وہ کہتی ہیں اے خدا کے بیٹے، ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈالنا. عذاب میں اور عذاب سے نکالنے والا خدا ہوتا ہے. موترس سے بدروہیں چنگی ہیں. موترس سے تو بدروہیں اچھی ہیں، جو کہتی ہے ہمیں وقت سے پہلے. اچھا، قدوس خدا کو کہتے ہیں جی، تو بدروہیں بھی کہتی ہیں قدوس قدوس. تو یسوع مسیح نے ہیکل میں اسے کہا خاموش اے گندی بدرو، خاموش، قدوس نام تیرے منہ سے نہ نکلے. یسایہ میں بڑی، آپ پہلے پڑھیے جی. ہاں جی 5ویں باب کی 22 اور 24. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ سجدے کے سبب سے کیا ہے خدا؟ ہاں 20ویں. جی لوکا کی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 5 آیت نمبر 20 سے. تو یہ نہ دوسرا باب پڑھ. اس نے ان کا ایمان دے کر کہا اے آدمی تیرے گناہ معاف ہیں. گناہ کون معاف کرتا پیا ہے؟ خدا. ایتھے بیٹا گناہ معاف کرنے دیا ہے. اے آدمی تیرے گناہ. ہن موترازاں نوں تکلیف ہون لگ پئی. اگے پڑھو کنی تکلیف ہوئی. اس پر فقیہ اور فرشتے سوچنے لگے یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے. کیا کہنے لگے جی؟ اچھا کیا تھے انہیں یہ وہی گناہ. انہوں نے تو یہ کہا تیرے گناہ معاف، تو کہتے کفر بکنے لگا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے عالم تھے، وہ جانتے تھے گناہ. موترس کو تو یہ بھی نہیں پتا گناہ معاف کون کرتا ہے. اگر موترس کو پتا ہوتا تو کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا، کیونکہ فقیہ فریسیوں کو پتا ہے، شرع کے عالموں کو پتا ہے، کاہنوں کو پتا ہے گناہ خدا معاف کرتا ہے. تو جب بیٹا معاف کر رہا ہے تو پھر کیا کہو گے سے؟ بولو نا، بولنا پڑے گا. شور ڈالو بیٹا خدا ہے. لوگوں کو بتاؤ یہ نا کم سے کم تو آپ کو کافر کہہ دیں گے. جیسے آپ ان کو کیا کہہ رہے؟ کفر. یہی کہنے گے نا کفر. اپنے دفتروں میں، اپنی جاب میں کوئی بھی پوچھو تو کہو یسوع خدا ہے. یسوع نے صرف یہی کہا تمہارے گناہ. تو انہوں نے کی کیا جی؟
कुफर बकता है। یہ کفر بکتا ہے. गुनाह اس کا सिर्फ खुदा ही माफ कर सकता گناہ تو صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے. جی دیکھیے خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ جی یسوع نے ان کے خیالوں کو है। जान लियो کس کو جانا جی؟ کر کے کس کو جانا؟ ख्यालों को। دل کو بھی جانا، روح کو بھی، اور خیالوں کو. خیالوں کو کون جانتا ہے؟ خدا دل کو کون جانتا ہے؟ روح کو کون جانتا ہے؟ میں نے ایک واقعہ آپ کو پڑھ کر سنایا. کیا؟ शमौन شمع ان کے दल کی بات جانی، یہاں خیال جانے. جی ابھی اور خاصیت ہیں. کلمہ کی خاصیت خدا بھی ہے، تو کلمے کی خاصیت ہے ہر چیز کو جان لیتا. اتنی خاصیت ہے، بند چیز ہو نا، بند. رومیو کے خط میں، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے بند 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 میں سے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں کو جانچتا ہے. روح، جان اور بدن سے گزر جاتا ہے. روح میں سے بھی گزرتا ہے، جان میں سے بھی گزرتا ہے. اس لیے اس کو کلمہ خدا ہی کہو. اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا اس کا نام کلام خدا کہلا. اس کا نام کلام خدا. اور کوئی رائے ہی نہیں. جی ہاں جی پڑھ دے. یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب دیا. جواب میں ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اور چل؟ جی کہتا دونوں میں سے کون سی بات آسان ہے؟ یہ کہنا اپنی چارپائی اٹھا تو چل. بھائی تو 38 سال کے بیمار کو کہو پھر، بھائی کہہ دو اٹھاؤ چارپائی، اب وہ بھی نہیں کر سکتے. یا یہ کہنا آسان ہے تمہارے گناہ معاف. وہ دونوں باتیں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے ذہن میں، ان کی روح میں یہ تعلیم تھی بھائی گناہ خدا معاف کرتا ہے، انسان گناہ معاف نہیں کر سکتا. اس لیے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ خدا ہی کہہ سکتا تھا تیرے گناہ. ان کے دل کے خیال، ان کے دلوں میں جو ہلچل مچی ہوئی تھی جیسے موترستیں بچی ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ خدا ہے یا نہیں. اچھا اسے اتنی فکر کیوں لگی ہوئی ہے؟ اتنی آپ کو فکر نہیں یسوع خدا ہے یا نہیں جتنی اسے لگی ہوئی ہے. وہ جس بھی نظریے سے بائبل پڑھتا ہے نا، پھر کہتا ہے بائبل بدل گئی ہے، پھر کہتا ہے جی اگر وہ خدا ہوتا تو وہ 12 سال کے جسے خون آ رہا تھا اسے جان جاتا. اس نے جان کر کہا کس نے مجھے چھوا ہے؟ मेरे से कुवत निकली. جانا ہے. اس نے کہا مجھ میں سے قوت نکلی. اے نہیں ستا سی. شاگردوں نے سوال بھی کر دیا کیا یہ گناہ اس بچے نے کیا یا اس کے ماں باپ نے؟ علم سابقہ کا سوال کر دیا. تو یسوع نے جواب دیا نہ اس کی ماں نے گناہ کیا نہ ان کے باپ نے گناہ کیا، بلکہ یہ اس لیے ہے جلال ظاہر کرنے کی. تو محترم تجھے بائبل کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ روح سے لکھی گئی ہے، یہ روح سے سمجھی جاتی ہے. اس کا تعلق قبولیت کے ساتھ ہے. مسیحی بھی سن لیں، اگر بائبل کو اور بیٹے کو قبول نہیں کرتے تو انجیل مقدس کی سمجھ نہیں آئے گی. جب تک بیٹا سمجھ نہ دے، جب تک خدا کا بیٹا جو اکلوتا حقیقی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا جو اس کی ذات سے ہے، جو اس کے جوہر سے ہے، جو اس کے جلال سے ہے، جو اس کے کلمہ سے ہے، اس لیے بیٹا کلمہ ہے. بیٹا کیا ہے جی؟ کلمہ. جی پڑھیے جی. 41. نہیں یہ سایہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ پڑھیں جی. ایت نمبر 23 تو 25 تک، دوسرا باپ یوحنا کی انجیل. یوحنا کی معرفت لکھی خدا کی انجیل، اس کا باب نمبر ہے 2، تسی مکاشفہ آیت کتاب. نمبر 20 سے جو لکھا ہے یہودیوں نے کہا 40 گز میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا. پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا
तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था। सर 20वीं आयत पढ़नी, बाप नंबर कौन सा? दूसरा 23 तो 25। 23 से 25। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजूदों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, लेकिन यीशु ने अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और उसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान उसके हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। उन्होंने दिलों ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੌਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਯਿਸੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ। ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਸ਼ਵਾਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ। यसाया 41 से हाँ जी। 37 आयत। ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਸ਼ਵਾਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਯਸਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ। ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दूसरे बाब की दिया? 8 है। मैं खुदावंद ने जो अव्वल और आखिर हूँ जी। वो मैं ही हूँ। अव्वल और आखिर कौन है जी? खुदा। खुदा। अव्वल और आखिर कौन है जी? नहीं जी, ये यसाया छे। मैं हूँ अल्फा और मैं अव्वल और आखिर, अल्फा और मैगा भी मैं हूँ। ਇੱਥੇ खुदा ਯਸਾਇਆ 'ਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ 'ਚ ਵੇਖੋ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ जी। आपका है, लो जी। मुकाशफा उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत। और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, और जो आमीन। अव्वल और आखिर, मैं ते अव्वल और आखिर कौन? जो मर गया जिंदा हुआ, वो फरमाता है अव्वल और आखिर मैं हूँ। कहता है यस्सु ने कोई गल नहीं की थी, आप कह रहे अव्वल और आखिर मैं हूँ। यसाया में खुदा कह रहा है। खुदा यसाया च कौन कहन डया? खुदा। मकाशफा च जड़ा मर गया सी मुर्दियां चो जी उठया, वो कहन डया मैं हाँ जी। की जी? अव्वल और आखिर। खुदा का एक तरीका था बंदे को बुलाने का, कोई बता सकता क्या तरीका था? खुदा आसमानों पर होता था तो क्या देता था जी? आवाज़ देता था, आवाज़ देता था। मूसा को आवाज़ दी और लोगों को, इब्राहिम को बुलाया, बड़े लोगों को बुलाया। तो जब आप इमाल की किताब उसका 9वां बाब देखते हैं, कामरान भाई पढ़ेगा, तो वहाँ पलूस रसूल जो कलीसिया को सताता है, उसे क्या कौन आवाज़ दे रहा है? ज़रा देखिए खुदा का, देखिए ज़रा खुदा देखिए जी। 9वें बाब की 4थी आयत जी। इमाल बाब नंबर 9 है, आयत नंबर 4 से। और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जी। तू सताता है। खुदा दा तरीका की सी? आवाज देकर बुलाना। बेटा कित्थे है? होर कोई आसमान ते क्या आवाज़ां देंदा ज़मीन ते? ओदी आवाज़ आउंदी है ज़मीन ते? खुदा दी आवाज़ ही ज़मीन ते आउंदी। एक खुदा की खूबी और भी है, हर जगह पर क्या होना? मौजूद। हर जगह पर। अच्छा, अब यीशु की खूबी भी देखें। यीशु ज़मीन पर है तो कहता मैं बाप की गोद में हूँ, है ज़मीन पर तो कहता क्या है? मैं बाप की गोद में हूँ। गोद में भी मौजूद है और ज़मीन पर भी मौजूद है। फिर कहता है जी मोहतरज
बेटे ने कब कहा मेरे नाम पर इकट्ठे होकर इबादत करो? तो मत्ती की अंजील में लिखा है 1 या 2 मेरे नाम से या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं क्या होऊंगा जी? मौजूद। हर जगह पर मौजूद होना खुदा की खूबी है, तो बेटा खुदा है। अब प्रूफ हुआ या नहीं? इतने हवाले पढ़ने से, इतने हवाले देखने से फिर बंदा कहे भाई बेटा खुदा नहीं, तो फिर मैं सबको कहूँगा तेरे डेले हो गए पत्थर दे जिन्हां विचों विखना कख नहीं। आ जा तेनू मैं वखावां जे तू खुदा वेखना। आ जा तू जे तू खुदा देखना। तो वो यस्सु है जी। वो कौन है जी? यस्सु है। फिर कहता जी खुदा ने कब कहा ये मेरा बेटा है? तो पतरस के खत में भी और पुराने अहदनामा में भी, अगर तू दना है तो बता, खुदा के बेटे का नाम बता। फिर तू बता खुदा के बेटे का नाम क्या है? रोज आप निकालें यूब का किताब, आप पतरस इमसाल में। हाँ जी जी, ये देखिए खुदा खुद आवाज दे रहा है। दूसरा पतरस पहला बाब 17 आयत। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, खुदा खुद कह रहा है। जब खुदा कह रहा है मोहतरस को पता नहीं क्यों इतराज है। फिर बात नहीं बनेगी तो कहेगा ये बदल गई है। मुझे तो ऐसे लग रहा है उसकी हालत बदल गई है, उसे कोई समझ ही नहीं आ रहा। यस्सु के अलावा उसे और कोई नज़र ही नहीं आता। बेशक मुखालफत की नज़र में थे। हाँ जी, दूसरा पतरस पहला बाब 17 आयत जी। दूसरा पतरस बाब नंबर 1 आयत नंबर 17 से कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफसल जलाल में से उसे ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जी इमसाल 30 बाब चे है जी। हाँ जी, नाम जी पढ़ दिए रोज नए अहदनामा च भी। और ना मुझे उस कदूस का इरफान हासिल है कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा, किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया, किसने पानी की को हदूद में बांधा, किसने जमीन की हदूद ठहराई। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है? क्या नाम है? उस बेटे का नाम यशुआ, उसका नाम मैनुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा आपके और मेरे साथ है। उस बेटे का क्या नाम है जी? यशुआ। यशुआ। तर्जुमा करेंगे तो उसका तर्जुमा बनेगा यस्सु, ईसा। उसका नाम ईसा है। बड़े तर्जुमे करो जीसस। जितनी लियाकत है उतना तर्जुमा कर ले। तो बेटे का जिसने हवाओं को थमा दिया। बहुत जगह पर यह गलत पेशन गोई नहीं है जी त्रैत की। पानी को कहा रुक जा, रुक गया। हवा को कहा थम जा, थम गए। तो ये ऐसे काम तो खुदाई कर सकता है। मुर्दों में जान खुदाई डाल सकता है। मुर्दों में या उसके मसे से होता है या खुदाई से होता है। तो बेटा वो खुद ही कहते हैं, हाँ वो परिंदे बनाते थे, ये खुद भी कहते हैं। चलो हमने उसकी मनादी क्यों करनी है, पता नहीं उसमें क्या सच्चाई है क्या हकीकत। हम तो हकीकत, ये बाइबल मुकद्दस जो है ना, ये कामरान भाई किसी की वसाखियों पर नहीं चलती। इसकी बाबत लिखा है, ये बेहतर बातें कहती है, इसकी बेहतर खिदमत, इसका बेहतर अहद, इसके बेहतर वादे, ये सारी बातें आसमान की करती हैं। इसलिए कोई हमारे यीशु को गाली भी निकाल दे, हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम कहते हैं ये जानता ही नहीं है। क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि
कलमा जब मुजस्सम होकर आया तो किसी को समझ आई किसी को ना आई, तो इसलिए हमें कोई इतराज़ नहीं होता। इसलिए इनसे हमारी क्या बहस, हमें तो समझ बख्शी है, बेटा खुदा है। बेटे को कबूल करें तो आप फ़र्जंद बनेंगे, तो जब आप फ़र्जंद बनेंगे तो आपको बेटे की समझ आ जाएगी। लिखा है हमेशा की ज़िंदगी है खुदाए वाहद को जानने में और उसे पहचानने में। और पहचान के लिए, बेटे को पहचान के लिए बेटे को देखना पड़ता है। लिखा है कांबल करने वाले बानी यीशु मसीह को तकते रहो। तो खुदा आपको बरकत दे। और बेटा क्या है जी? हकीकी खुदा है। ज़रा नारा लगाए, बेटा क्या है? हकीकी खुदा है। बेटा हकीकी खुदा है। आप भी महक में लगाएं, लगाएं नारा, क्या है जी? बेटा हकीकी खुदा है। बेटा हकीकी। खुदा है। आमीन। आमीन।